Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. So this case scenario is based on financial instruments under India's 32, 107 and 109, and our major topic is compound financial instrument and which is related with compulsorily convertible preference share. So let us see data given in this scenario. So we are given that Ore Exploration Limited (OEL) is engaged in manufacture of drilling and mining equipment for over the last 25 years. The management of the company planning to expand the manufacturing activities for which funds are needed. On 1st April of current financial year, to meet out the financial requirement, so OEL issued 50,000 compulsorily convertible cumulative preference shares of ₹100 each. So these preference shares carry a coupon rate of 12% per annum and is payable every year. The company has substantial profit for payment of preference dividend. Under terms of instrument, every two preference shares are convertible into one equity share of ₹100 each at the end of the 4th year. The prevailing annual market interest rate for a similar debt without conversion option is 15% per annum. And the transaction cost of completing the issue process of the instrument is 3% of the proceeds and effective interest rate is 16.6% per annum. फिर आपके पास है different MCQ like number 1, we are asking determine the amount of financial liability to be recognized by OEL on 1st April of current financial year on date of issue of compulsorily convertible preference shares. तो पहले देखो डाटा ड्रॉ करके आपको मेंशन किया है. So company is OEL on 1st April of current financial year. So this is our current financial year on 1st April. So company has issued 50,000 compulsorily cumulative convertible preference shares. So of ₹100 each. It means total amount is ₹50 lakhs. So which company has to pay coupon 12% which is our fixed preference dividend. So on which preference dividend is given. So that is 12% per annum. But this is compulsorily convertible. It means and we are also given that these are convertible into share, one share for of ₹100 each for every two preference share at the end of 4th year. It means life of this share is 4 year. तो 4th ईयर में ये आपका कंपल्सरीली वर्क हो जाएगा कन्वर्टेड इनटू इक्विटी. इट मीन्स जब कंपल्शन आ जाती है कि आपने इसको इक्विटी में करना है कन्वर्ट, इट मीन्स देयर इज नो रिडेम्पशन वैल्यू, तो आपने कोई रीपेमेंट नहीं करनी है. तो इसमें अब आपको देखना है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी कितनी है, इक्विटी कंपोनेंट कितने हैं, और यदि आप इस टाइप का प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन तो आपको मार्केट का रेट हमें मेंशन किया है. तो मार्केट रेट इज गिवन टू बी 15% पर एनम. तो कैलकुलेट करते हैं MCQ नंबर 1. तो आपको देखना है पहले इसमें लायबिलिटी का कितना कंपोनेंट है, व्हाट इज अवर फाइनेंशियल लायबिलिटी. तो दिस इज फॉर कंपल्सरीली कन्वर्टिबल क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. तो दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर जो फिक्स्ड पेमेंट आपको करनी है. तो आपके पास 4 ईयर्स हैं, तो 4 ईयर में आपको हर साल डिविडेंड पे करने हैं. तो उसकी कैलकुलेट कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड पेमेंट. इट मीन्स ये बन जाएंगी आपकी, देखो फिक्स्ड पेमेंट है आपकी ऑन 50 लाख, डिविडेंड दीजिए 12% विच इज 6 लाख, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4 एनुअली आप अप्लाई कर सकते हैं एट 15% फॉर 4 ईयर. तो किसी कमिंग ₹6 लाख इनको करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4 एनुअली. तो एट 15% देखिए आपको ये मेंशन किया ही है, आपको ये दे रखे हैं फैक्टर से. तो आपको चाहिए 4 ईयर का 1 डिवाइडेड बाय 1.15. तो दिस फैक्टर इज कमिंग 2.8550. तो टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा 2.855 इंटू 6 लाख. तो दिस अमाउंट इज ₹17,13,000. तो इट मीन्स ये अब आपकी लायबिलिटी कंपोनेंट बन जाएगी. बैलेंस बन जाएगी अब आपकी इक्विटी कंपोनेंट. इक्विटी कंपोनेंट हम लेते हैं टोटल अमाउंट जो कंपनी को रिसीव हो रहा है 50 लाख माइनस दिस मच.
So minus 50 lakhs. So this amount will be coming rupees 3287. बट अब आपकी इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी है विच इज 3% ऑफ टोटल अमाउंट। तो इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट कंपनी को पे करनी है और ये जब आपने ये प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं ये अमाउंट आपको रिसीव होना है, तो इसमें से आपको माइनस करनी है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, उसकी परसेंटेज यही रखी है आपको एट द रेट ऑफ 3%। तो दोनों में अपने आप ये इस प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएगी। नाउ लेट अस सी व्हाट इज वैल्यू ऑफ तो अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड व्हाट इज अमाउंट ऑफ इक्विटी कंपोनेंट। दिस इज फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर compulsorily convertible cumulative preference share and equity component is also CCCPS. So this will be 17 lakh 13,000 minus करके 3%. So this will be 16 lakh 61 610. Similarly equity 32 lakh 87,000 minus 3%. So this will be 31 88 390. But they are asking in first MCQ only what is the amount of financial liability. So it will be this one. You can see which option is the correct answer is option number B. Again we have second MCQ. They are asking compute the finance or interest cost of OEL Limited for the first financial year ending 31st March. Again third MCQ they are asking compute finance or interest cost of OEL Limited for the fourth year एंडिंग 31st मार्च। तो टोटल लाइफ आपको 4 ईयर की है, तो उसके लिए देखो पहले हम बनाते हैं जो लाइबिलिटी है उसका शेड्यूल। तो लेट अस शो फाइनेंशियल लाइबिलिटी और CCPS शेड्यूल ऑफ OEL लिमिटेड। इसमें आपकी 4 ईयर की लाइफ है, तो आपको शो करने हैं इन ईच ईयर तो 1 2 3 एंड 4 मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, फाइनेंशियल लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। फिर उसके ऊपर आपकी अब आप देखो आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बाद आपका अमाउंट रिड्यूस हो गया था लाइबिलिटी का, और इसीलिए आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी दे रखा है जिस इज गिवन टू बी अवर 16.6%। इट मीन्स अब आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो ड्यू हो जाएगी एट द रेट ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट कॉस्ट जिसको कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट, जिसे also called finance cost due at the rate of 16.6%। और तरह आपने फिर एक्चुअल पेमेंट करनी है डिविडेंड की, वो आपको मेंशन किया है 12% एक्चुअल डिविडेंड पेड, तो किसी एट द रेट ऑफ 12%। तो लाइक सी हाउ मच इज लाइबिलिटी कंपोनेंट देखो आपने कैलकुलेट किया है दिस इज 1661 610 इन फर्स्ट ईयर। तो इसके ऊपर आप ड्यू कीजिए अपनी फाइनेंस कॉस्ट 16.6%, 1661 610 इंटू 16.6%। तो जिस वन इज कमिंग 275 827। फिर आपका डिविडेंड था जो आपने कैलकुलेट किया था ऑन 50 लाख के ऊपर 12% 6 लाख रुपीज़, तो 6 लाख आपने पे कर दिया है। तो मीन्स ये आपका ऐड हो जाएगा लाइबिलिटी में, ये माइनस हो जाएगा, आपकी आ जाएगी बैलेंस लाइबिलिटी at the end of first year which will become opening balance of second year. So let us see how much it is 1661 610. So our plus 275 827 minus 6 lakh, अब आपका बैलेंस रह गया है 1337, so 437। So on this interest cost is 16.6%, this is 222,015 and again minus 6 lakh, so minus 6 lakh, so this amount is 9, so 59,452, so this is 959,452 and on this again interest cost is 16.6%, this is 159 269 and minus is 6 lakh. So now our balance is 518, so 721 और आपकी लास्ट पेमेंट है 6 लाख
लेकिन जो लास्ट ईयर में डिफरेंस आएगा वो आपकी फाइनेंस कॉस्ट बन जाएगी। So this is minus 6 lakh. This is 81279. So now we can calculate MCQ2. They are asking what is our finance or interest cost for first financial year ending 31st March. What is your finance, which is also called as interest cost of first financial year, which is ending on 31st March. तो आप देखिए इसकी कॉस्ट आ रही है आपकी जिसमें जो फर्स्ट ईयर में हमने कैलकुलेट की है। तो दिस इज ₹275,827. So now you can see which option is the correct answer is option number C. So next we have MCQ number 3. They are asking compute finance or interest cost of OEL for the fourth financial year ending 31st March. अब आपने जो कैलकुलेट करनी है फाइनेंस और इंटरेस्ट कोस्ट of fourth financial year. So this also we have already calculated 81,279. तो ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी फोर्थ ईयर की। तो रुपीज कुछ मीन्स MCQ के थ्रू इनडायरेक्टली उन्होंने पूरा शेड्यूल ही आपसे पूछ लिया है। तो फर्स्ट ईयर का भी कैलकुलेट होगा, लास्ट ईयर का तभी कैलकुलेट होगा जब आप पूरा शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे। तो दिस आंसर ये 81,279. Now you can see which option is the correct answer is option number A. Next fourth MCQ they are asking determine amount to be credited to security premium account on conversion of compulsorily convertible cumulative preference share at end of fourth year. तो जब आपके प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होंगे इक्विटी में तो उस टाइम आपको देखना है कितना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा अमाउंट। तो उसकी एंट्री देखने पहले क्या होगी फोर्थ ईयर में, जिस जबर एंड ऑफ फोर्थ फाइनेंशियल ईयर। तो आपने इक्विटी कंपोनेंट जो कैलकुलेट किया था हमने इनका बिगनिंग में, तो उस इक्विटी कंपोनेंट को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। इक्विटी कंपोनेंट आपका कंपल्सरीली कन्वर्टिबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, ये आपका डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में आएंगे जितने आपने इक्विटी शेयर इशू करने हैं। ये आपको देखो मेंशन किया था कि आपने 1 शेयर इशू करना है फॉर एवरी 2 प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर है 50,000, इट मीन्स इक्विटी शेयर हम इशू करेंगे 25,000। तो टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका इक्विटी कैपिटल में 25,000 इंटू 100, 25 लाख। इक्विटी कंपोनेंट देखो हमने कैलकुलेट किया था 3188,390, 3188,390 इनका बिगिनिंग जब आपने फाइनेंशियल एबिलिटी कैलकुलेट की थी। जो बैलेंस है वह आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। So this amount is coming to 688,390. तो आपका आंसर है 688,390 will be credited to security premium account on conversion of a preference share into equity at the end of fourth year. Now you can see which option is correct. Answer is option number C. In this lecture we have discussed case scenario based on our compulsorily convertible preference share, which is the topic of compound financial instrument. तो फर्दर टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।